सीखते ही जाएंगे, झूमे नाच गाएंगे, सितारों से आगे भी दुनिया बनाएंगे। जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर, जस्ट जूनियर। Exercise is king, nutrition is queen. Put them together, you will got a kingdom. Nutrition is the only remedy that can be used with any treatment. Remember, food is our best medicine. Hi friends, I'm Sanskriti Verma And I am Alia San. Welcome back to your favorite show, Just Junior. Just junior, Friends, आ गए हम आपसे मिलने, लेकर खूब सारी मस्ती and lots of knowledge. और करेंगे आपसे खूब सारी बातें, देखेंगे स्टोरी, करेंगे एरोबिक्स। Right friends, remember, exercise is very important for our daily routine. ये सिर्फ हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के लिए नहीं, हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि इससे हमारे मसल और बोन्स स्ट्रांग होते हैं। Very right आल्या। तो दी बुला लेते हैं हमारे जूनियर फ्रेंड आफरीन और अन्विता को। अरे आल्या, तुम श्वेता दी को भूल गई? अरे नहीं दी, मैं श्वेता दी को नहीं भूली, मुझे लगा आप भूल गई। नहीं आल्या, मैं कैसे भूल सकती हूँ? So let's welcome श्वेता दी, आफरीन and अन्विता. just junior. Good morning everyone. Welcome to Fitness World. Fit body is a new fashion statement. So let's get fashionable and fit. We will begin our session by running on the spot to get our heart rate up and warm up our body. We will focus on lower body today. First exercise जो आज हम करेंगे on the spot squats. This is a very good exercise for your leg and hip bones and it shape up your glutes too. Second exercise which we will do today is squat hold. This is very good for your core. Third exercise which we will do today is lunges. This is very good exercise for your back muscles and core. Fourth exercise which we will do today is lunges pulse. This works very well on your hamstrings. We will do all these exercises together to get the best result out of it. Let's cool down our body and get our heart rate to the normal pace.
Thank you for staying with us. See you next week. Till then, stay fit, stay healthy. Jai Junior, दी एरोबिक्स करने के बाद हमारी बॉडी में कितनी एनर्जी आ जाती है? राइट आलिया, फ्रेंड्स हम सबको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए. थैंक यू सो मच आफरीन, अन्विता एंड श्वेता दी. थैंक यू. Jai Junior, The human body needs variety of nutrition such as carbohydrates, protein, vitamin, fats, minerals and water to function properly, maintain optimal health. Right Alia, good nutrition is essential in preventing various chronic diseases such as heart disease, obesity, diabetes and cancer, as well as promoting overall wellness, longevity and cognitive function. तो आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हम अपने शो में अपने एक्सपर्ट्स को बुला रहे हैं. Let's welcome Ms. Madhvi Sharma, who is an integrative nutritionist. Welcome to our show, ma'am. Thank you. Let's also welcome Mrs. Sumita Bhattacharya, who is the academic coordinator of TPS Indirapuram. Welcome to our show, ma'am. तो अपने शो को शुरू करने से पहले देख लेते हैं शॉर्ट फिल्म. मैम, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. बच्चों को दिन भर के लिए कितना प्रोटीन आवश्यक है? सो आलिया, जैसा कि हमने देखा अभी कि प्रोटीन्स जो हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी होते हैं, राइट. और इस एज में बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाते हैं. नाउ रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस फॉर बॉयज़ इन द एज ऑफ 13 to 18 years इज़ 45 to 55 grams per day एंड फॉर गर्ल्स इट इज़ 43 to 46 grams per day. पर ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि हमें क्या करना है, राइट. तो हमें ये करना है कि दिन भर में हम जो भी मील्स खा रहे हैं, हर मील में वी हैव टू इंश्योर कि एक प्रोटीन का सोर्स उसमें हो. वो हम कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं उसमें हम मिल्क पॉरेज खा सकते हैं, तो मिल्क हो गया, एग्स खा सकते हैं, ये प्रोटीन के सोर्स हो गए. वहीं लंच करते समय दाल हुई, दही, पनीर, चिकन, फिश, कढ़ी चावल, राजमा चावल जैसे यमी फूड्स अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो सीरियल पल्स कॉम्बिनेशन से भी हमारी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है. तो फ्रेंड्स, आज हमारे शो में हमारे साथ जुड़े हैं TPS इंदिरापुरम के स्टूडेंट्स और वो हमारे एक्सपर्ट से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे. कैन वी प्लीज हैव द फर्स्ट क्वेश्चन? Ma'am, I often don't like drinking milk, but when I add external powders which often claim to increase strength and height, then I'm able to drink it. What difference does it make in my nutrition? Hello Anand, that's a nice question. I always find this children of growing age, they don't drink milk. I would suggest you, rather than adding protein powder to the milk, it would be good if you make a smoothie out of milk. Like you can add oats to the milk, you can add a little bit of sugar to the milk, you can make a smooth paste or a smoothie, or in fact you can even add some dry fruits to it, so it makes an entire diet instead of just taking milk and some protein powder. Protein powder over the long period of time would not do good to your body. So ma'am, would you like to add something to that? एब्सोल्युटली, वेरी वेल आंसर्ड आई मस्ट से. बट मैं ये कहना चाहूँगी अनहद, अगर आपको दूध अच्छा नहीं लगता, अगर आपको दूध अच्छा ही नहीं लगता तो दूध की जगह आप कर्ड या पनीर का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं आप मिल्क शेक्स बना के इफ़ यू वांट टू हैव मिल्क बट डोंट लाइक प्लेन मिल्क, तो आप मिल्क शेक्स के फॉर्म में मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेवर मास्क द फ्लेवर, नेवर यूज एनीथिंग टू मास्क द फ्लेवर ऑफ एनी फूड आइटम दैट यू डोंट लाइक. इट्स नॉट गोइंग टू डू गुड फॉर योर बॉडी. Can we please have the next question? How junk food is considered bad.
So I just wanted to know, how can we strike a balance between junk food and nutritious food if we like nutritious food as well? वेल जंक फूड जो होता है ये दो कैटेगरीज का होता है. एक तो ऑब्वियस जंक फूड है, हम सभी को पता है कि चिप्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स आर जंक, दे आर नॉट गुड फॉर द बॉडी. बट आज की डेट में एक और कैटेगरी ऑफ जंक फूड है जो कैमोफ्लाज जंक फूड है तो वो जंक पर उसे हेल्थ के नाम पे प्रमोट किया जा रहा है. जैसे कि ये बोलना कि ये मैदा के नूडल्स नहीं है, ये तो आटा नूडल्स हैं, या ये बिस्किट्स इनमें तो फाइबर डला है तो ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, या जैसे कोई प्रोटीन पाउडर दूध में डाल के पीना, ये भी जंक की कैटेगरी में ही आते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि आप क्या इंक्लूड कर रहे हैं अपने डाइट में. ऑफ कोर्स जंक फूड जो है आप खाना चाहते हैं, आज की डेट में बहुत पॉपुलर भी है, पर सही फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर फूड की क्वालिटी पुअर है तो उसकी क्वांटिटी भी आपको कॉन्शियसली कम रखनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी आपको कम रखनी है. 80-20 का रूल आप फॉलो कर सकते हैं. 80% ऑफ द टाइम्स ईट द फूड दैट इज़ कमिंग आउट ऑफ योर किचन एंड प्लान करके 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार आप अपना फेवरेट जंक फूड इंक्लूड कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ अ हेल्दी डाइट. So ma'am, I would like to add here, how do we actually encourage students to eat healthy? वेल आई फील संस्कृति दैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम बच्चों को इंक्लूड करें इन द प्रोसेस ऑफ मील प्लानिंग, मेन्यू डिस्कस करें, उनको किचन में इन्वॉल्व करें ताकि उनका इंटरेस्ट बने, राइट. उसी के बाद वैरायटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेम खाना, मोनोटोनस खाना खा खा के हर कोई बोर हो जाता है, इसीलिए वैरायटी इंक्लूड करना ज़रूरी है. लेट मी टेल यू, इंडिया में 65,000 वैरायटीज़ ऑफ दाल हैं, बट हमारे घर में वही 4-5 दालें रिपीट मोड पे बनती रहती हैं. उसी के साथ साथ हमें थोड़ा सा क्रिएटिव होना पड़ेगा, थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़, जैसे कि दाल को दाल की तरह ना सही दाल का चीला इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल के अप्पे बना सकते हैं. रागी डोसा इज़ सच अ डिलिशियस डिश. उसी के साथ साथ हम जब सैंडविचेस बनाते हैं तो उसमें हमस लगा सकते हैं, चटनी लगा सकते हैं, पनीर एंड वेजिटेबल सैंडविच, या फिर वेजिटेबल्स को प्योरी करके, जैसे हमने बीट रूट को प्योरी किया या स्पिनच को प्योरी किया, उससे हम आटा मारेंगे तो रेड या ग्रीन रोटी बनेगी. उस रोटी का फिर हम रोटी रैप या रोटी रोल बना सकते हैं. एंड आई एम श्योर यू वुड अग्री कि पहले हम फूड को देख के आँखों से खाते हैं, राइट. फूड नीड्स टू बी एपेटाइजिंग. तो थोड़ा सा अगर हम प्रेजेंटेशन पे ध्यान देंगे तो मम्मा डैडी को बिल्कुल भी जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हेल्दी फूड के ऊपर, बच्चे खुशी खुशी खा लेंगे. अमेजिंग रिकमेंडेशंस मैम. मुझे यकीन है कि ये सारी रिकमेंडेशंस यूज होने वाली है हमारे व्यूअर्स. सारी रेसिपीज ही बता दी आपने. थैंक यू सो मच मैम. मोस्ट वेलकम. Can we please have the next question? So I don't want to gain weight, and so I avoid consuming fats like ghee or nuts because they're high in calorie. Is that a fact? So ये एक बहुत ही बड़ी मिथ है, ये मानना कि फैट खा के हम फैट हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. देर आर गुड फैट्स, देर आर बैड फैट्स, राइट. गुड फैट्स में आता है घी, कोकोनट, नट्स एंड सीड्स, एंड जो डेयरी से फैट मिलता है. फैट प्लेज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो हैं फैट से बने हैं, और इस एज में क्योंकि हमारे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट हैं, तो हेल्दी फैट को इंक्लूड करना इज़ इम्पेरेटिव. अगर आप अपने हार्मोनल बैलेंसिंग चाहते हैं, अपनी ग्लोइंग स्किन चाहते हैं, एंड अपने आप को स्लिम एंड ट्रिम रखना चाहते हैं, तो आपको अपनी रोटियों पे घी, दाल चावल पे घी, पोहा पे ग्रेट करके कोकोनट, इडली सांभर के साथ कोकोनट चटनी, स्नैक्स के रूप में नट्स एंड सीड्स को ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए. थैंक यू सो मच फॉर द आंसर मैम. सुमीता मैम, मेरा क्वेश्चन आपसे है. जैसे बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके स्कूल नहीं आते, बहुत जल्दबाजी में आते हैं, तो आप उनको कैसे काउंसिल करते हैं कि वो ब्रेकफास्ट करके आएँ? लाइक ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे, तो आप क्या उनको रिकमेंडेशंस देंगे? देखिए, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक तो बच्चा जब मॉर्निंग में आता है स्कूल में तो उसको कंटिन्यूस क्लासेस होते हैं एंड दे गेट अ ब्रेकफास्ट टाइम मे बी एट 11 o'clock. तो तब तक खाली पेट रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तो हम बच्चों को और पेरेंट्स दोनों को कहते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल जो ग्रोइंग बच्चे होते हैं वो ज़्यादा पेरेंट्स के सुनते नहीं हैं, वो आके देर से खाना चाहते हैं. मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जब ये बच्चे पढ़ते हैं तो इनको फिज़िकली
मेंटली अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए भी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट की बहुत इम्पॉर्टेंस है। बच्चे कन्वेंशनल रोटी सब्ज़ी ये नहीं खाना चाहते हैं, तो हम पेरेंट्स को ये काउंसिल करते हैं मॉर्निंग में कि एक ग्लास, क्योंकि जैसा एग हो गया या 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये अपने में ही एक कंप्लीट डाइट है। फॉर एग्जांपल एग, इट हैज़ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। उसी तरह से मिल्क में भी मिल्क प्रोटीन है और मिल्क में फ़ैट भी है और ऑफ कोर्स कार्बोहाइड्रेट पार्ट भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये छोटे छोटे पोर्शन ऑफ ब्रेकफास्ट जो है ये मॉर्निंग में करें ताकि वो मेंटली एंड फिजिकली अलर्ट रहे। माधुरी मैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू इट? जैसा कि सुमिता मैम ने बताया, बहुत से रिसर्च, बहुत से सर्वेज हुए हैं जिससे ये आउटकम फाइनल और कंफर्म्ड हो गया है कि जो बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आते उनका ना सिर्फ हेल्थ डिटोरिएट करता है बल्कि उसी के साथ साथ एकेडमिक परफॉर्मेंस भी, क्योंकि ये बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ब्रेन फॉग के चलते मेंटल जो प्रोडक्टिविटी है वो थोड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। वहीं क्योंकि चिड़चिड़े हो जाते हैं, जब हमें भूख लगती है हम थोड़े रेस्टलेस और थोड़े इरिटेबल होते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सोशल इंटरैक्शन भी जो हमारे पेयर्स के साथ है वो अफेक्ट करता है। एंड लॉन्ग रन में क्योंकि रेगुलर ब्रेकफास्ट ना करने से इम्यूनिटी भी कम होती है, तो अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आते वो स्कूल से ज़्यादा एब्सेंट होने लगते हैं एज कम्पेयर टू दोज जो रेगुलर ब्रेकफास्ट करके आते हैं। फ्रेंड्स, आप हमारे एक्सपर्ट से अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Usually in the morning, I don't like eating something, and that's why I usually skip the breakfast part. So, like, is there anything that I can do to like avoid these things? Like, I don't feel like eating in the morning. उदिशा, जैसे अभी हमने बात की है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इज नॉन नेगोशिएबल, राइट? अब आपने बोला कि मुझे सुबह उठ के भूख नहीं लगती, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि आप रात को कितने बजे खाना खाते हो? अगर आप रात का खाना लेट खा रहे हो या फिर आप देर तक जगे हो और फिर कुछ मिडनाइट मंचिंग स्नैकिंग कर रहे हैं, तो शायद सुबह उठ के आपको भूख नहीं लगेगी। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कई बार हम सुबह काफ़ी लेट उठते हैं और रश में हमें स्कूल जाना होता है, टाइम बहुत कम होता है, तो अंदर से हमारी बॉडी उस फाइट एंड फ्लाइट मोड में होती है जब ऑटोमेटिकली हमारी भूख जो है बंद हो जाती है। सो आई वुड एडवाइज यू टू जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आपके रूटीन में आप इनमें से क्या गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुबह भूख लगना इज़ अ साइन ऑफ हेल्थ। So I recommend that you fine tune your night rituals and morning routine and कुछ खा के ज़रूर जाएं। वेरी राइट मैम, थैंक यू सो मच फॉर द आंसर। फ्रेंड्स, आप अपना अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Ma'am, could you please suggest some healthy snack options for children of our age? So healthy snacking में आप फ्रूट्स ले सकते हैं, मिल्क शेक्स ले सकते हैं, घर में बने हुए ट्रेडिशनल जो लड्डू हैं वो आप खा सकते हैं, या फिर अगर आपकी एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप रोटी रैप, रोटी रोल, सैंडविचेस, केसिडियाज खा सकते हैं। वहीं स्प्राउट चाट इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इट्स टैंगी, थोड़ा सा टेस्ट बदलता है, एंड इट्स वेरी वेरी फिलिंग ऑल्सो। सो एक्सपर्ट्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। आपने हमें और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, न्यूट्रिशन के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। इट वॉज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो मैम। अरे पीकू, कहाँ हो? दिखाई क्यों नहीं दे रही हो? कहाँ हो पीकू? कहाँ छुप कर बैठी हो? अरे आलिया, पीकू तो नजर ही नहीं आ रही। हाँ दी, अरे वो बैठी पीकू दी। हाँ, वो रही आलिया। मैं कहीं छिपी हुई नहीं हूँ आलिया, मैं तो बस तुम्हारे और संस्कृति दी के साथ हाइड एंड सीक का खेल खेल रही हूँ। अब आलिया, सिर्फ तुम ही थोड़ी, पीकू भी तो तुम्हारे साथ जोक कर सकती है ना? हाँ दी, वो तो है। मैं तो सोच रही थी आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने जा रही हैं? ओ पीकू, फिर से मजाक। अच्छा, आज मैं अपने जूनियर फ्रेंड्स और तुम्हें भी हौस खास लेक रेस्टोरेशन की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ओह, तो तुम हमें हौस खास झील की पुनर्जीवित की कहानी सुनाने वाली हो? पीकू, प्लीज सुनाओ ना, बहुत मजा आएगा। यस पीकू, वी आर वेरी एक्साइटेड। यस। आओ बच्चों, सुनाती हूँ तुमको एक कहानी। जल संरक्षण का सदा मानव करो प्रयास, वरना भविष्य में नहीं बुझेगी प्यास।
बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। हौज खास झील को पुनर्जीवित करने की कहानी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में पानी की कमी दूर करने के लिए एक हौज यानी टैंक बनवाया था। उसी के नाम पर पास वाले गांव को हौज खास बुलाया जाने लगा। मूल झील 125 एकड़ में फैली थी और उसकी गहराई 4 मीटर थी। आधुनिक काल में ये झील केवल 15 एकड़ में सिकुड़ गई और गहराई भी सिर्फ 1 से 2.5 मीटर रह गई। झील के नीचे का स्तर झरझरा चट्टान होने के कारण और ग्रीष्म में भारी वाष्पीकरण की वजह से झील हर ग्रीष्म काल में सूख जाती है। 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण को आदेश दिया कि झील को पुनर्जीवित करने के लिए वसंत कुंज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से एक दिन में 20 लाख लीटर उपचारित अपशिष्ट जल को एक प्राकृतिक चैनल के माध्यम से झील की तरफ संचालित करने के लिए एक योजना लागू की जाए। झील को क्या हो गया? लगता है सारा पानी सूख गया। और ये बदबू कैसे आ रही है? हम लोग पास ही में हौज खास गांव में रहते हैं और हमारे बच्चे यहाँ रोज खेलने के लिए आते हैं। बच्चे झील की हालत देखकर बहुत ही दुखी हैं और हम सब इस झील की सूखने की वजह जानना चाहते हैं। कृपया हमें झील सूखने का कारण बताइए। आसपास के इलाकों में बूस्टर पंप से ज़्यादा पानी खींचने के कारण भूजल का स्तर नीचे चला गया है। झील के नीचे का स्तर चट्टान है जो ज़्यादा पानी नहीं सोख सकता है और आप जानते ही हैं कि दिल्ली में कितनी गर्मी पड़ती है। ऐसे में पानी का वाष्पीकरण यानी भाप बनना बढ़ जाता है। इसलिए गर्मियों के मौसम में झील का पानी बिल्कुल सूख जाता है। इंटेक यानी इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज एक संस्था है जो भारत के विरासत के प्रति जागरूकता और संरक्षण की दृष्टि से सन 1984 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। हमारी टीम में उस संस्था के और DDA यानी दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकर्ता हैं। हम इस झील को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, हम सब भी आपकी मदद करना चाहते हैं। मैं भी मदद करना चाहती हूँ। आप सब पानी बचाकर और उसका सही प्रयोग करके हमारी मदद भी कर सकते हैं। हम सब अपने गांव में कोशिश करेंगे कि सब पानी बचाएं और कोई बिना जरूरत के पंप से पानी खींचकर बर्बाद न करे। झील को पुनर्जीवित करने के लिए वर्षा जल संचयन का ढांचा लगाया गया, जिसके कारण दोबारा झील में पानी इकट्ठा होने लगा। कार्यकर्ताओं ने उपचार किया हुआ मल वाला जल पानी पीने को छोड़कर दूसरे उपयोगों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में भी लोगों को बताया। वर्षा जल संचयन के माध्यम से झील में दोबारा पानी भर गया और आसपास के इलाके में जैसे नया जीवन आ गया। कार्यकर्ताओं ने लोगों को समझाया कि पानी बचाने का और उसके सही उपयोग करने का उन सबका सामुदायिक प्रयास ही इस झील का नवीनीकरण कर पाया है। जब सब लोग मिलके काम करते हैं तब कोई काम मुश्किल नहीं लगता है। इलाके के बच्चों ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर झील के चारों तरफ पेड़ पौधे लगाए। पेड़ उगाने से मिट्टी में पानी की मात्रा सही रहती है और हवा की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। देखो देखो कितने सुंदर पक्षी। बहुत दिनों के बाद यहाँ इतने सारे पक्षी दिखाई दे रहे हैं। सब लोगों के संयुक्त प्रयास से झील में नई जान जो आ गई। इस तरह आसपास के निवासियों की सामुदायिक मदद से हौज खास झील पुनर्जीवित हो पाया। कार्यकर्ता और बच्चे जानते हैं कि जल संरक्षण और उसका सही उपयोग करने से ये झील आने वाली कई पीढ़ियों तक सजीव रहेगी। झील में
जब से नई जान आई है, हमारे घरों में भी अब बहुत देर तक पंप चलाकर पानी खींचना नहीं पड़ता। बिजली भी बचती है और मेहनत भी, और भूजल का स्तर भी ऊपर आ गया है। अब झील के पास हम रोज घूमने जाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं। माहौल कितना अच्छा हो गया है। तभी तो मुझे भी यहाँ घूमने में मजा आता है। देखा आपने, वर्षा जल संचयन, पेड़ पौधे लगाना और पानी बचाते हुए उसका सही उपयोग करना, कितना फायदा हुआ है इन बातों का। अब ले लेते हैं हमारे व्यूअर्स के ईमेल। राइट आलिया, तो ये ईमेल आया है लखनऊ से एक प्यारी सी 10th क्लास की स्टूडेंट विशाखा का। वो कहती हैं, दी आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा लगता है। मैं, मेरे भाई, मम्मा, हम सब आपका प्रोग्राम देखते हैं और आपका स्टोरी टेलिंग सेगमेंट और एरोबिक सेगमेंट हम सबको बहुत अच्छा लगता है। हम भी आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। विशाखा, we will love to have you here. Thank you for such a beautiful email. Thank you. Friends, now it's time to take your leave. We will meet you on the same day, same time, next week, only on your favorite show, Jazz Junior. तो आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही, और आप अपने फीडबैक हमें दे सकते हैं लॉग इन करके ddjazzjunior@gmail.com पर, और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। Till then, stay safe and out of trouble, my friend. Bye bye. Bye. टेक्नोलॉजी और थिएटर में नाम हम बनाएंगे, योगा अपनाएंगे, मिलके अपनी राह बनाएंगे, विद्या एजुकेशन से सीखते ही जाएंगे।